کیونکہ ہمیں وہ رشیا اس وقت زیادہ سوٹ کرتا ہے امریکہ کی نسبت. اچھا، کہتے ہیں کہ جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کے کام آتے ہیں، جلدی پہنچ جاتے ہیں باقی معاملہ. تو آپ نے انڈیا کو چھوڑ کے رشیا والی سائڈ پہ گئے تو انڈیا ہمارا ہمسایہ تو ہے لیکن ہماری بقا کا وہ ضامن نہیں ہے. پاکستان کو جو دوستی کی بات ہے وہ انڈیا سے بھی کرنی چاہیے اور یو ایس اے سے بھی کرنی چاہیے. اس میں مین ایشو جو ہے وہ شیعہ سنی کا ہے. جب تک یہ ریزولو نہیں ہوگا ہم مسلمان کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے. ہم تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ہمارا ملک بہت پریشان ہے. آج تک کوئی اچھا لیڈر نہیں ملا جو ملک کسی سٹیج پہ لے جائے. تو مسائل ہی مسائل ہیں. ہمارا ملک جو پاکستان ہے وہ مسائل ہی ہیں. مسائلستان اس کا نام ہونا چاہیے، پاکستان نہیں ہونا چاہیے. سر بتائیے کہ دونوں انڈیا اور امریکہ سے ہمیں کس سے دوستی کرنی چاہیے یا آپ اس کے ہٹ کے سوچتے ہیں؟ سارے دوستی دے کوئی لائق نہیں ہے. ہر بندہ اپنے مفاد دا وا. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی بندہ ہوئے ایم پی ہے، ایم این اے ہے یا کوئی منسٹر آ، جڑی بھی حکومت آئی ہے ہمیشہ غریب آدمی پسیا. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی کسی کا نہیں سوچتا ہے. انہوں اپنی اپنی پی ہے. انڈیا کے پراسپیکٹو کے حوالے سے بتائیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انڈیا سے دوستی کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ٹریڈ ایزیلی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ہے. دوسرا ہمارے ٹریڈیشنلی ہم بہت اٹیچ ہیں. اس کے بعد ٹیکنالوجی بھی ہم سے آگے ہے. ناظرین، میں ہوں سلیم مبارک. آج ہم لوگوں سے بات کریں گے، ان کو آپشن دیں گے کہ امریکہ اور انڈیا ان دونوں کنٹریز میں سے اگر پاکستان کو فرینڈشپ کرنی چاہیے تو کس کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ ہمارا کویشچن ہے. لوگ اپنی طرف سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. یہ نہ وہ فیل کریں کہ ہم نے ان کو کچھ فیڈ کیا ہے. جی، میں ہوں سلیم مبارک. ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان کو اگر دوستی کرنی چاہیے، دو ممالک کا آپشن ہے، امریکہ اور انڈیا. ان دونوں میں سے اگر پاکستان کسی کے قریب ہو تو وہ کون سا کنٹری ہو سکتا ہے؟ جی پلیز بتائیے گا. وہ رشیا بھی ہو سکتا ہے، وہ خاص کر برطانیہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمیں وہ رشیا اس وقت زیادہ سوٹ کرتا ہے امریکہ کی نسبت. کیونکہ وہاں ہمیں پیٹرول اور آئل وغیرہ وہاں سے گیس ایزیلی سستی مل سکتی ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کے کام آتے ہیں، جلدی پہنچ جاتے ہیں باقی معاملہ. تو آپ نے انڈیا کو چھوڑ کے رشیا والی سائڈ پہ گئے تو انڈیا ہمارا ہمسایہ تو ہے لیکن ہماری بقا کا وہ ضامن نہیں ہے. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے جو نزدیک امریکہ ہماری مدد کو 71 میں پہنچا، 65 میں پہنچا، 71 نہیں پہنچا. اس لیے اس وقت ہم رشین بلاک میں چل جاتے تو شاید وہ پہنچ جاتے، نزدیک تھے. لہذا ہمیں اس بلاک میں ہی رہنا چاہیے. امریکہ جو بلاک ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے پاس آپ کو دو ہم آپشنز دے رہے ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا انڈیا ہے. ان دونوں میں سے پاکستان کو اگر دوستی کرنی چاہیے تو کس کنٹری کے ساتھ کرنی چاہیے؟ السلام علیکم. پاکستان کو جو دوستی کی بات ہے وہ انڈیا سے بھی کرنی چاہیے اور یو ایس اے سے بھی کرنی چاہیے. بیٹر پالیسی تبھی بنتی ہے، ترقی پہ ملک تبھی گامزن ہوتا ہے جب آپ کے ہمساؤں سے اچھی لیک ہو. اور میرا نہیں خیال ہے کسی کے بھی ساتھ آپ کو کوئی دشمنی کریٹ کرنی چاہیے. یہ ہونی چاہیے اپنی پالیسی ہوئے ہر ملک کے ساتھ. انڈیا کے ساتھ اپنی جہاں پہ آپ کو فائدہ لگتا ہے، یو ایس اے کے ساتھ جہاں پہ آپ کو فائدہ ہے کسی آپ کی پالیسی کا، وہ آپ ان کو پیش کریں، ان کو بتائیں، اپنے مقاصد بتائیں، اپنے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے یہ چیز پالیسی اچھی ہے، یہ ہمارے معاہدے ہونے چاہیے، وہ ان سے کریں. نو پرابلم، نو ایشو. اچھا، اس کی وجہ پھر کیا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بالکل سب سے دوستی ہونی چاہیے. ہم ہمسایہ ہونے کے باوجود ابھی تک انڈیا سے وہ دوستی کیوں نہیں بنا پائے؟ اس کی وجہ دیکھ جی، آپ کو پتہ ہی ہے جو ہماری یہ پی ڈی ایم ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ سب اکٹھے ہیں اور یہ کن کے متحد ہے. اگر ہم بیسیکلی ہم پیچھے جائیں تو یہود و نصارہ سے ہماری دوستی قرآن میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. جو یا پولیٹیشن آئے گا یا جو سی بھی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، اگر وہ ان کے کہنے پہ لائے عمل چلیں گے، پاکستان کے اوپر وہ لائے عمل اپنائیں گے، تو یہ ہماری کامیاب ہم ہو نہیں سکتے کسی بھی طریقے صورت میں. اچھا، اگر آپ کو تیسرا کوئی آپشن دینا پڑے، کون سے کنٹری کا آپشن دیں گے جس سے جلدی دوستی ہو سکتی ہے؟ سر دوستی تو بیسیکلی ہمیں عرب کنٹری سے ہونی چاہیے. اس میں مین ایشو جو ہے وہ شیعہ سنی کا ہے. جب تک یہ ریزولو نہیں ہوگا ہم مسلمان کہیں بھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے یہ کہ ہمیں جو شیعہ سنی ہے نا، ہم آپس میں بہت ایک دوسرے سے گنجلے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کا اچھا نہیں سوچتے ہیں. ہم مسلمان ہی ہیں. جب تک ہم ایک نہیں نہ ہوں گے، ہم کسی پہ
काबू नहीं पा सकते। हमारे अंदर ही एक दूसरे के लिए गरदार पैदा हो गए, जैसे मीर जाफर मीर सादिक पैदा हुए हैं। ये लॉन्ग स्टोरी है। हम आप एक दूसरे का अच्छा चाहते ही नहीं है बेसिकली फ़िरका वारियत में। और इसके बाद फिर फ़िरका वारियत है, इससे नीचे बरादरी निज़म है। फिर उसके बाद पॉलिटिशियन में घर में, यानी कि आपको पता है, एक भाई कहता है मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, दूसरा कहता है मैं पीपल पार्टी को, तीसरा कह रहा है मैं पीएमएल नून का हूँ। ये फसादात हैं ये सब। हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए। उसमें जैसे कुरान में है कि काले को गोरे पे, गोरे को काले पर, किसी अरबी को, किसी को अजमी को, किसी को एक दूसरे के ऊपर फ़कीयत हासिल नहीं है। हम जब तक एक दूसरे को बराबर नहीं समझेंगे, हम बराबरी पे इंसाफ के तकाजे पे आ ही नहीं सकते। 2 कंट्रीज, हाँ जी, इंडिया और अमेरिका, ठीक है। किससे हमें दोस्ती करनी चाहिए? हमें दोनों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने अपने मुफाद सामने रख के हमें इस्तेमाल करते हैं और बाद में हमारी बात नहीं पूछती। हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं, हमारा मुल्क बहुत परेशान है। आज तक कोई अच्छा लीडर नहीं मिला जो मुल्क को किसी स्टेज पे ले जाए। तो मसाइल ही मसाइल हैं। वो लोग अपना इस मुख्तलिफ हुकूमतें हमारी बदली हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आया, सब लोग अपने अपने काम निकालते हैं और अपने अपने काम करते हैं। मुल्क का कोई सोचता नहीं है। ऐसे ही हालात है। हमें किससे, हम तो खुद अपने आप पे, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हमारे मुल्क को तरक्की करनी चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना है, जो इसमें बेहतर है वो करना चाहिए। सबसे बेहतरीन कंट्री दोस्त हमारा वो कौन सा हो सकता है? वो चीन है, वो चीन है हमारे साथ बहुत अच्छे तल्लुकात है, भाईचारा अच्छा। सऊदी अरब है, जो मुल्क हमारा हालात और वाक़यात को देखते हैं, समझते हैं, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। बाकी तो फार अपने मतलब के लिए सब अपने मसाइल का हल निकालते हैं। हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो मसाइल ही है। मसाइलिस्तान इसका नाम होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे मसाइल हैं। इसके ये तो खुद दिन ब दिन मीशत इसकी ख़त्म हो जा रही है। मसाइल हैं, गुर्बत है, गुर्बत में लोग बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। लोगों के पास तो बिजली के बिलों के पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है और कुछ नहीं। जब हमारे मुल्क ने IMF से कर्ज़ा ले लिया तो क्या हुआ? कर्ज़ा ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल हो, हमारा मुल्क तरक्की करे तो फिर है। ये हमारे ये सूद में ये पैसे वापस चले जाएंगे, हम उधर ही देखते रहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ देखते रहेंगे, अपने मुल्क की तरफ देखते रहेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। बात इनसे ऑफ दी कैमरा हो रही थी, बड़ी खरीद इन्होंने बात की। हम इनसे बात की जानना चाहेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के मसाइल किस में देखते हैं। पहले तो इनसे दोस्ती का पूछते हैं। सर बताइएगा, दोनों इंडिया और अमेरिका से हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए, या आप इसके हट के सोचते हैं? ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, MP ਹੈ, MNA ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੂਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਰਬਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਕਸਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਰਾਮ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਲਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਬਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। 2 कंट्रीज हैं, इंडिया और अमेरिका। अगर पाकिस्तान को इन दोनों में से दोस्ती करनी चाहिए तो किसके साथ करनी चाहिए? अगर आप इस दोस्ती को आप जो कह रहे हैं अमेरिका और इंडिया, जैसे अगर
इंडिया के पर्सपेक्टिव के हवाले से बताएं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं तो उस वजह से हम ट्रेड इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर उनके साथ है। दूसरा, हमारे ट्रेडिशनली हम बहुत अटैच हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी भी हमसे आगे है। मैं बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट, मुझे पता है कि वहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वो एग्रीकल्चर में जो एनुअल प्रोडक्शन होती है पर एकड़ के हिसाब से वो हमसे काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। उसके बाद उनके पास सीड की ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हमारे पास नहीं, हालांकि उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं और बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके हवाले से अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं तो हम पीस आएगा। पीस आने की वजह से जो हमारा ये आर्मी का बजट वगैरह या दूसरी तीसरी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हम पैसे बचा के अपनी एजुकेशन वगैरह पे लगा सकते हैं। और लेकिन एक सबसे अहम जो नुक्ता है जिस पे आज तक हमारा उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो है कश्मीर का इशू। अगर हम बैठ के किसी टेबल पे कोई सिंसियर गवर्नमेंट कोशिश करती है तो उसके हवाले से अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अमेरिका हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हो गए। लेकिन अगर अमेरिका को देखते हैं तो वो एक ग्लोबल पावर है, सुपर पावर कहलाते हैं। पर्सनल वो अपना इन्फ्लुएंसेस यूज़ करके दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इस कंट्री के साथ ट्रेड करो या ना करो। उस वजह से वो इन्वेस्टमेंट आती है या हम अपनी चीज़ें दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज तक हमारी गवर्नमेंट जब से शुरू हुआ तकरीबन 1971 के बाद से, तो हम वहाँ से लोन ले रहे हैं, कर्ज़े ले रहे हैं, वो हमारी इमदाद कर रही है। अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन हुआ उसके हवाले से उन्होंने हमें रिलीफ फ़ंड की मदद में पैसे दिए, F-16 की मदद से पैसे दिए। तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने हैं। अच्छा, बात आपने बिलाल भाई उसमें बात की कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट तो चाइना का भी है इंडिया के साथ, लेकिन उनकी ट्रेड भी आपस में हो रही है, तो क्या हमारे पाकिस्तान में ऐसे मामला नहीं बन सकते? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकते। लेकिन जो उधर बैठे हैं जिनके पास पावर है, असल में पावर है इंडिया में और पाकिस्तान में। अब देखें पीछे वो एक सिस्टम आया था कि वो प्याज की एक्सपोर्ट उन्होंने रोक दी थी, टमाटर महंगे हो जाते हैं उसकी एक्सपोर्ट रुक जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सी बार कोई इशू होता है तो ये अपनी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है रोक देते हैं। पीछे वो चाइना का लद्दाख वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ रहा था और एक वीडियो भी आई थी उसके हवाले से ना, कि चाइना ने ना उनकी चीज़ों को बाइकआउट कर दिया कि हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना से इंडिया वालों ने। तो चाइना ने बाइकआउट चाइना के नाम से कैब बना के वो सेल करने लगे, उन्होंने उसमें भी बिज़नेस ढूंढ लिया। और मेरे ख्याल में जो किसी भी कंट्री को अगर उन्हें तरक्की देखनी है, प्रॉस्पेरिटी देखनी है, तो सबसे पहला जो रूल है वो हम बिज़नेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, अपना सेल्फ लीव करें और सेल्फ प्रोडक्शन पे जाएं, अपनी इंडस्ट्री लगाएं। अब ये फैसलाबाद में हम खड़े हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है, कितनी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो जाए, किस वजह से एनर्जी का क्राइसिस आया हुआ है, एनर्जी के प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो इस वजह से डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू था। एज़ यूजुअल हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स किनके साथ हैं। हम चूँकि वी आर कॉल्ड द गोल्डन स्पैरो ऑफ एशिया, मतलब हमारे पास तकरीबन हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक एग्रीकल्चर, उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट, हमारी प्रोडक्शन, हर चीज़ में अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम मुख्तलिफ़ कैद साली का शिकार हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम किसी कन्फ्लिक्ट के बावजूद, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें वहाँ से अडॉप्ट करनी चाहिए। इंडिया की बात करें, एग्रीकल्चर में वो हमसे आगे जा रहे हैं। इसकी रीज़न ये भी है कि उनके मुख्तलिफ़ लोगों के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। रिसेंटली मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत जो जंगी हालात हैं इनसे बाहर निकल के हमें सोचना चाहिए। मैंने ये छोड़ दिया कि पाकिस्तान वो ख़ुद अपनी मौत मरे। इसके पीछे ये पर्सपेक्टिव था उसका कि हम दूसरे ममालिक के साथ अच्छा लिंक करते हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छा लिंक किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी की। इसके बावजूद अगर हम अपनी तरफ आएँ, हमने तकरीबन पॉलिटिक्स के लिहाज से ख़ुद अपने मुल्क का बेड़ा खुद गर्क कर दिया।
वो 9 मई वाला पीछे नहीं भूल रहे कि हम ये जो वाक़या हुआ है उससे नहीं निकल रहे। तो हमें चाहिए कि हर चीज़ से बालातर होकर हमें ये चाहिए यूएस के साथ हम अपने तल्लुकात अच्छे करें, उनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। कम टू इंडियंस, इंडिया के साथ हमें अपने तल्लुकात बिल्कुल अच्छे करने चाहिए। इसके बावजूद जैसे उन्होंने टमाटर की प्रोडक्शन की, हमारे आने बंद कर दिए, हमारे क्राइसिस बढ़े, तो इससे क्या होगा, मुल्क के नुकसान होंगे, उनका भी क्या। हमें उनके साथ बिल्कुल अच्छे माहदे करने चाहिए जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी हो, हम उन्हें अपनी अकोमोडेट दें, वो अपनी हमें दें। तो मेरा तो यही है कि हमें यूएस से और भारत दोनों के साथ करनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, आईटी के लिहाज से हो, जिस चीज़ मर्जी से हो, हमें तो उनके साथ मुआहदात अच्छे करने चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें ताकि मुल्क के लिहाज अच्छे हो, इन सब से बालातर होकर पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए, हमें खुद तरक्की करनी चाहिए और हर मुल्क के साथ मुआहदे अच्छे होने चाहिए। ये तो नाज़रीन आपने देखा है, यंग, ओल्ड और दरमियान में जिसको गोल्ड भी बोलते हैं, सब ने अपनी अपनी ओपिनियन दी। लेकिन उसमें बहुत सारे जो लोगों ने जो आपने देखा, जो स्टूडेंट्स भी थे दो, उन्होंने कहा कि हमें इंडिया के साथ बिल्कुल फ्रेंडशिप करनी चाहिए। एक और दोस्त ने भी कहा कि फ्रेंडशिप करनी चाहिए। नेबर्स हैं आपके साथ, अगर जापान और यूएसए ये हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के बाद इकट्ठे हो सकते हैं, चल सकते हैं दुनिया में, और दोनों इस वक्त राइजिंग इकोनॉमीज़ भी हैं और पावरफुल कंट्रीज़ भी हैं, तो पाकिस्तान को भी अपने मामला के हवाले से ज़रूर देखना चाहिए सवाल।